Good morning, welcome back. Macroeconomics. Topic is foreign exchange rate. Today we will discuss this point. First point is devaluations and revaluation. Second point, devaluations versus depreciation. Flexible exchange rate system. Fixed exchange rate versus flexible exchange rate system, and what is the managed floating rate system. This is important. Class 1 is very important. So we'll start. PDF already sent to you. When you are using YouTube, you also open your PDF file. That will be convenient for you to synchronizing both the factor, the read and hearing. That will be the effective or more effective than in the normal class. I think the show the PDF file as well as the hearing part. तो दोनों एक साथ synchronize करोगे, that will be the more easy way to learn. Think it, devaluations and revaluations. Just to explain, devaluations refers to the reduction in the value of domestic currency. Yesterday और last class में मैंने flexible system और devaluations और undervaluations, appreciation, depreciation सारा कुछ discuss किया था, and that is a part of the next topic. The devaluations refers to the reductions in the value of domestic currency by the government. Reduction means reducing by the government. The devaluations is said to be the occur when the exchange rate is increased by the government under the fixed exchange rate system. On the other hand, revaluation मतलब devaluation हो जाएगा decrease, and on the other hand, revaluation is the refers to the increase the value of domestic currency by the government. तो गवर्नमेंट अपना करेंसी को वैल्यू को इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है due to exchange rate flexibility. This is the point of flexible. It is not fixed. Sometimes it is increased and sometimes it is decreased, operated by the government for the international market. ये ध्यान रखोगे कि devaluations and the revaluation definition अगर asked in the question, then you are writing this point. कि devaluation is the reducing the value of currency by the government, and revaluation is the increase the value of currency by the government. Nothing else. Extra कुछ मत लिखो. Now the point. Second, the devaluation versus depreciation. Depreciation is the variant. ध्यान रखना. तो वही same concept यहाँ पर भी apply होगा. Language थोड़ा सा हट जाएगा, but the concept is same. Now I am discussing. First point मैंने बोला meaning, second में बोला occurrence, and third में बोला exchange rate system. देखो फाइल खोल के the PDF file or the book. Meaning devaluation बोल रहे हैं, devaluations refer to the reductions in the price of domestic currency. Devaluations refer to the reduce the price in the domestic currency in terms of all foreign currency. Relation कहाँ से होगा? Devaluation मतलब हम exchange, जब भी हम कोई भी चीज compare करेंगे, there must be some comparing part. तो comparing part, devaluation increase हो रहा है, decrease हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? Foreign currency के साथ. So it is the relations in between the local currency or the current currency or the internal currency or domestic currency with relation to the external currency. तभी तो हम relation create करेंगे. अगर हम किसी भी एक चीज को compare करेंगे तो we have two product. One is the normal product and is the specific product. दोनों को हम compare करके देखेंगे. There is a two type of fridge. एक बनाता है ऑलवेन, एक बनाता है सैमसंग, तो दोनों को कंपेयर करेंगे. अगर हम एक ही फ्रिज को लेके मार्केट में बैठ जाएंगे तो कंपेयर किससे करेंगे? नथिंग. तो जो डिवैल्यूएशन हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है या डिवैल्यूएशन मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिवैल्यूएशन मतलब इंक्रीज हो रहा है करेंसी का वैल्यू व्हिच इज इन कंपेयर विद द फॉरेन कंट्रीज रेट ऑफ करेंसी. तो मीनिंग में डिवैल्यूएशंस रेफर टू द रिडक्शंस इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन currency under the fixed exchange rate system. Depreciations refer to the fall in the market price of domestic currency in terms of the foreign currency under the flexible exchange system.
डेप्रिसिएशन क्या होता है, टोटली फॉल कर जाता है, रिडक्शन रिड्यूसिंग नहीं होता है, रिड्यूसिंग होगा तो इंक्रीज भी हो सकता है, बट द फॉल जैसे मार्केट वैल्यू एसेट के वैल्यू क्या होता है, फॉल हो जाता है, क्योंकि वो कभी बढ़ेगा नहीं, दैट इज अ फिक्स, डेप्रिसिएशन हो गया मतलब यूज किया नहीं किया, योर वैल्यूएशन और योर द एसेट वैल्यू विल बी रिड्यूस। वो कभी ऐसे मत सोचो कि आज मैंने रिड्यूस किया कल मैं डेप्रिसिएशन को किया कल मैं एप्रिसिएशन कर दूंगा, नो, एप्रिसिएशंस एंड डेप्रिसिएशंस इसमें से क्या होगा, दिस इज द alternate name of the devaluation and revaluations. So depreciations refers to the fall in the market price of the domestic currency in terms of the foreign currency under the flexible exchange rate regime, or you can say it is a flexible, मतलब जहाँ पे depreciation होगा it is a flexible method and जहाँ पे devaluation होगा that is a fixed method. First point, there is a meaning. Second, occurrence मतलब कब ये होता है, when it happened, occurrence means it is happened. देखो क्या बोल रहा है, it take place due to the government. गवर्नमेंट जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक ये नहीं, गवर्नमेंट करेगा तभी तो ऑकर होगा, तभी तो ये आएगा, रिड्यूस हुआ या इंक्रीज हुआ। ऑन द अदर हैंड डेप्रिसिएशंस इट टेक प्लेस ड्यू टू द मार्केट फोर्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में डिमांड आएगा करेंसी की तो हाई हो जाएगा, मार्केट में डिमांड नहीं आएगा तो ये लो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखोगे, depreciation is not controlled by the government, only the devaluation is controlled by the government, depreciation is controlled by the market force। ऐसे करके धीरे धीरे रीड करोगे देखोगे याद रह जाएगा। लास्ट पॉइंट में मैंने बोला एक्सचेंज रेट सिस्टम। व्हाट इज एक्सचेंज रेट सिस्टम, देखो क्या बोल रहा है, इट टेक प्लेस अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, what devaluation and depreciation it take place under the flexible exchange rate system। याद रखोगे, नॉट सो हार्ड। डिवैल्यूएशन होता है फिक्स रेट, वो मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी लास्ट में डिस्कस किया था, एंड डेप्रिसिएशन होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर में। तो 3 पॉइंट, इसलिए मैंने पॉइंट को मार्क किया। मीनिंग, ऑकरेंस कब होता है, गवर्नमेंट होता है, ये मार्केट फोर्स होता है। एक्सचेंज रेट सिस्टम आइदर इट इज अ फिक्स्ड, डिवैल्यूएशन इज द फिक्स्ड रेट एंड डेप्रिसिएशन इज द फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम के अंदर ये इंक्रीज डिक्रीज होता है। नाउ द पॉइंट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। व्हाट इज फ्लेक्सिबल, फिक्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस। फ्लेक्सिबल व्हाट से ही पता चल रहा है कि दैट इज ए फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मींस कभी अप कभी डाउन, नथिंग इट इज ए फिक्स्ड। क्लियर, जैसे इंटरेस्ट रेट बैंक की फिक्स इंटरेस्ट रेट, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट। हम लोग लोन लेते, फिक्स इंटरेस्ट रेट में लोन लेते या फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट में लोन लेंगे। जिस दिन मेरा रेपो रेट, बैंक रेट घट जाएगा, मेरा इंटरेस्ट रेट भी घटेगा। जिस दिन मेरा बैंक रेट बढ़ जाएगा, मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इट्स कॉल्ड द फ्लेक्सिबल। अदरवाइज फिक्स्ड, फिक्स में तुम्हें सपोज 9% इंटरेस्ट डाल दिया तुम्हारे लोन के ऊपर, तो वो जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसकी इफेक्ट में नहीं मिलेगा। दैट इज द डेफिनेशन, और यू मे से द इंटरनल मीनिंग। द फिक्स्ड मीन्स इट इज द फिक्स्ड, इट्स नेवर बी फ्लक्चुएट, एंड फ्लेक्सिबल मीन्स it is sometime fluctuate high, sometime low। तो हम लोग एवरेज निकाल के जा सकते हैं। Now, flexible exchange rate system refers to the system in which the exchange rate is determined by the force of demand and supply of the different countries or currencies in the foreign exchange market। तो ये कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट फोर्स, नॉट गवर्नमेंट। फ्लेक्सिबल मतलब डेप्रिसिएशन जिस हेडिंग में आ रहा है, फ्लेक्सिबल रेट इज ऑलवेज कंट्रोल बाय द मार्केट। मार्केट मीन्स कितना करेंसी की डिमांड आ रहा है, कितना करेंसी की सप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिमांड ज्यादा आ गया, सप्लाई नहीं होगा तो रेट हाई हो जाएगा। ऑल्टरनेट, डिमांड आ रहा है, सप्लाई भी सफिशिएंटली आ रहा है, तो मार्केट स्टैटिक रहेगा, अप और डाउन किसी के अंदर में जा सकता है। तो पॉइंट दे रहा है, द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज अलाउड टू द फ्लक्चुएट फ्रीली अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वैल्यू ऑफ करेंसी फ्लक्चुएट करेगा अकॉर्डिंग टू डिमांड। कोई भी चीज देख लो, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर याद रखने के लिए, मार्केट में कोई भी सामान खरीदने गया, अगर वो मार्केट में अवेलेबल है तो नो प्रॉब्लम, द रेट विल बी कंपैरेटिवली ऑल द सेम। अगर वो मार्केट में क्राइसिस क्रिएट कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक रेट हाई हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई नहीं आ रहा है। तो एवरीबॉडी आर गोइंग टू और इंटेंड टू परचेज द प्रोडक्ट and they offer the higher rate to the seller also। तो ये एक इकोनॉमिकल
सिनोनिम्स और एक स्टाइल और प्रोसेस भी बता सकते हो कि मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड का जो बैलेंसिंग अगर बिगड़ जाएगा तो मार्केट में ये डिवैल्यूएशंस रिवैल्यूएशंस की चांसेस ऑन करेंसी में आने का एक चांसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि देयर इज ए नो ऑफिशियल और गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फ्लेक्सिबल रेट में गवर्नमेंट के कोई इंटरवेंशन नहीं है, मैं अभी अभी डिस्कस किया, बिकॉज ऑन द फ्लेक्सिबल द डेप्रिसिएशन इज देयर। इसमें ऑलवेज द मार्केट फोर्स मतलब डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी विल डिटरमाइन whether it is to be up or it is to be down. Next point में flexible exchange rate is also known as a floating exchange rate. Flexible और floating मतलब जो तैर के चला जाता है, flexible जो ही होता है अप डाउन, floating मतलब floating जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन किए थे, fixed installment method and the written down value method, तो वो तो थोड़ा सा अलग है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है, डब्ल्यूडी में भी सेम होता है, बट लगता है डिफरेंस कैटेगरी के ऊपर, वो एग्जांपल यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा। बेटर टू से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड बाय द बैंकर्स इन अ फिक्स रेट और इन ए फ्लक्चुएटिंग रेट। फ्लक्चुएटिंग रेट को फ्लोटिंग रेट बोलता है, इसको जस्ट याद रखो। नेक्स्ट, द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट, इट्स थ्रू द इंटरैक्शंस ऑफ द thousands of bank, firm and other institutions seeking to buy and sell the currency for purpose of making transaction in the foreign exchange। अब देखो क्या हो रहा है, ये तुम लोग सोच रहे होगा कि ये मार्केट में करेंसी अप डाउन कैसे हो रहा है। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे करके ये तो गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट बहुत सारे इंस्टीट्यूट मार्केट में दे आर जो फंडिंग करता है, मतलब इन्वेस्ट करता है मार्केट में टू अर्न प्रॉफिट। दे आर रिसीविंग मनी फ्रॉम प्राइवेटली, नॉट प्राइवेटली मतलब पब्लिक से लेता है और उसको फिर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। मैंने इसको डिस्कस किया था, नॉट ओनली द इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक इज प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन द मार्केट जो इस बिजनेस को ऑप्ट कर रखा है, पब्लिक से डिपॉजिट लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर और कंपटीशन विद द बैंक। बैंक अगर 6% दे रहा है, वो बोलेगा मैं आपको 6.5% दूंगा। ऐसे बैंक में भी होता है, जैसे तुम बंधन बैंक में चले जाओ, बंधन बैंक इज गिविंग द हायर रेट, एक्सिस बैंक हायर रेट, इन कंपैरिजन एचडीएफसी, एसबीआई लोअर रेट। तो देयर इज अ कंपटीशन, देयर इज अ मार्केट। तो ऐसे करके बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होता है, दे आर इन्वेस्टिंग थ्रू द फॉरेन करेंसी। तो दैट मींस दे आर इंटेंड टू परचेस द फॉरेन करेंसी, दैट्स क्रिएट द डिमांड, एंड इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू सप्लाई दैट करेंसी देन रेट विल बी हाई। वेरी सिंपल, नथिंग। तो इसीलिए यहाँ पे मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ, द फॉर्म्स ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशन सीकिंग टू बाय, सीकिंग मतलब इंटेंट टू बाय एंड सेल द करेंसी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द ट्रांजैक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज। तो या तो कुछ चीज सामान मंगा रहा है, कोई बिजनेसमैन बाहर से सामान मंगा रहा है, उसको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट करने पड़ेंगे, तो ही हैव टू गो टू द बैंक और इंस्टीट्यूशन और इन एक्सचेंज काउंटर जहां से वो करेंसी खरीदेगा एंड वहां पे भेजेगा, मतलब फिजिकली नहीं भेजेगा, ट्रांजैक्शन करेगा करेंसी के थ्रू। तो देयर इज अ क्रिएटिंग ऑफ डिमांड। अगर गवर्नमेंट उसको सप्लाई नहीं कर पाएगा तो रेट विल बी हाई। सो वेरी सिंपल। नाउ द पॉइंट, द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वर्सेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट, डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, फर्स्ट गवर्नमेंट कंट्रोल एंड थर्ड इज द स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा, देख लो पीडीएफ में भी 3 पॉइंट मैंने डाल रखा है। तो फ्लेक्सिबल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वर्सेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। द फर्स्ट इज द डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ये रेट डिटरमिनेशन कौन करेगा? फर्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड में बोल रहा है, इट इज ऑफिशियली फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड और इन अदर करेंसी बाय द गवर्नमेंट। तो फिक्स्ड इज ऑलवेज हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द गोल्ड और एनी अदर स्टैंडर्ड। फ्लेक्सिबल में क्या बोल रहा है? इट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज। तो ये चीज एक very simply याद रखो, fixed to be handled by the government through the gold and the flexible is handled through the market force। मार्केट में जो क्रिएट हो रहा है उसके हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी अप या डाउन होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रोल। देयर इज ए कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल एज ओनली द गवर्नमेंट हैज द पावर टू चेंज इट। क्योंकि फिक्स में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होगा, that is the only and one control from the government। On the other hand, flexible pay, there is no government interventions and the fluctuations freely according to the market demand। यहाँ पे market force control करेगा, market में supply ज़्यादा है तो rate is normal और maybe the go below। market में अगर supply नहीं है तो rate may be
डिमांड हाई होगा तो रेट बढ़ेगा, वेरी सिंपल। लास्ट, द स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट, द एक्सचेंज रेट जनरली रिमेन स्टेबल एंड ओनली ए स्मॉल वेरिएशन इज पॉसिबल। फिक्स के केस में, फ्लेक्सिबल के केस में, फ्लेक्सिबल केस में एक्सचेंज रेट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये एवरी मोमेंट चेंज होते रहता है, एवरी मोमेंट देयर इज ए चेंज। शेयर मार्केट में जाके कभी देखना, शेयर मार्केट इंडेक्स खोल के देखोगे तो पता चलेगा कोई भी शेयर कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज, फ्लेक्सिबल नेचर, क्योंकि कभी कभी मार्केट में उस शेयर के लिए परचेज के लिए डिमांड आता है, कभी कभी परचेज नहीं होता है, सेल के लिए डिमांड होता है, परचेज करने के लिए कोई नहीं आता है, तो प्राइस गोइंग डाउनवर्ड्स। तो शेयर मार्केट इज ए वेरी वोलेटाइल, इसको बोले वोलेटाइल मार्केट, और इट मे बी से द फ्लेक्सिबल मार्केट, याद रखना इस बात की। नाउ द पॉइंट, मैनेज लास्ट floating rate system. What is managed floating rate system? The traditionally or internationally monetary economics focus their attentions on the frameworks of the either fixed or flexible exchange rate system. ये तो आ ही रहा है शुरू से। Next, with the end of the Bretton Woods system. ये ध्यान रखना, the word with the end of Bretton Woods system. Many countries have adopted the method of managed floating exchange rate. After ending of Bretton Woods system, the managed floating ending rate को और floating rate को accept कर रहा है बहुत सारे country। क्या है this managed floating exchange rate? Read it. It's refer to the system in which the foreign exchange rate is determined by the market forces and central bank influence the exchange rate through the intervention of the foreign exchange rate. That means this is the combination of the fixed and the fluctuation. Simply the गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रहा है एंड एज वेल एज द मार्केट फोर्स आल्सो इन्वॉल्व हो रहा है, तो दोनों को मिला के इस रेट को कंट्रोल किया जाता है। दैट इज व्हाई द फ्लेक्सिबल इज कंप्लीटली गवर्नमेंट, सॉरी फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल इज द ओनली मार्केट फोर्स, बट द मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बोथ। वेरी सिंपल, मैं दोबारा रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। इट रेफर्स टू द सिस्टम इन व्हिच द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड by the market force and the central bank. Why central bank? Central bank means that is the government influences the exchange rate through interventions in the foreign exchange market. That is the managed floating rate system. थोड़ा सा और पढ़ लो। It is a hybrid. Hybrid means combination. It is a hybrid of the fixed exchange rate and the flexible exchange rate. तो क्योंकि fixed में there is only the government is involved, flexible में only the market force is involved, and managed में the both are involved. That is called, it is a hybrid rate of managed system. Next बोला है, it is a system control central bank interventions the foreign exchange rate market rate in restriction to the fluctuations in the exchange rate within the certain limit. एक लिमिट तक जाता है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसका अंदर होता है। For this, the central bank maintain a reserve of the foreign exchange to ensure that the exchange rate stay within the target value. ये target achievement, target को कैसे सेट किया जाता है? एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रेट डाउन हो रहा है, रेट डाउन हो रहा है, डाउन हो ही सकता है। कैसे रेट डाउन हो रहा है? मार्केट में सप्लाई ज्यादा है बट देयर इज नो डिमांड, रेट कम नहीं चालू हो जाएगा, बार्गेनिंग चालू हो जाएगा। एक सिंपल माइक्रो को साथ अटैचमेंट कर दो तो बेटर समझ में आओगे। तो वो रेट डाउन हो रहा है, तो रेट डाउन होता है एक लिमिट में, एक रेट डाउन होगा तो वो रेट को डाउन में ज्यादा नहीं जाने पड़ता है, एक परसेंटेज ऑफ लिमिट फिक्स करके रखता है सेंट्रल बैंक के अंदर कि ताकि उसके नीचे जाएगा तो हम इसको कट कर देंगे, तो ये डाउन जाना ही नहीं चाहिए, लिमिट टाई ऑफ करके रखता है। दैट इज कॉल्ड द टारगेट रेट। तो यहाँ पे इसलिए इस लाइन को बोला है, फॉर दिस द सेंट्रल बैंक मेंटेन ए रिजर्व of foreign exchange to ensure that the exchange rate system within the target value, एक target value में होना चाहिए, इसके नीचे जाना ही नहीं है। ये चीज हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। मार्केट शेयर्स में क्या होता है, वो बैन हो जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर उसको ओपन कर देता है मार्केट में, फिर उसको सेल्स और परचेज स्टार्ट हो जाता है। एंड लास्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज द डर्टी फ्लोटिंग। वेरी सिंपल। तो मैनेज floating rate system, nothing, it is a hybrid of the fixed and flexible and controlled by the central bank as well as the market force. एक लिमिट फिक्स होता है इसके अंदर, those who are fixing this limit, central bank, ताकि ये ज्यादा डाउन में चलाएगा, ज्यादा अप में भी नहीं जा सके। तो that's to be
कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। मार्केट फोर्स तो एक ऑटोमेटिक फोर्स है, उसको तो कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। डिमांड आएगा सप्लाई आएगा तो नॉर्मल, डिमांड आएगा सप्लाई नहीं आएगा तो हाई, डिमांड आ गया सप्लाई नहीं आया तो हाई, सप्लाई आ गया डिमांड नहीं आया तो लो। इतना एक कंसेप्ट है क्लियर। बट उसके बाद भी सेंट्रल बैंक अंडर दिस सिस्टम एक लिमिट को कर रखा है कि इतने रेट में हम इसको बेचेंगे या इतना रेट में हम इसको परचेस करेंगे। तो रेट वैल्यूएशन टू बी टारगेटेड रेट, इसको द टारगेटेड रेट एंड द सेट अप बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, सिंपल। एंड इसकी एक अलग नेम दे रखा है, दैट इज ए डार्टी फ्लोटिंग। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वर्सेस मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसमें क्या बोला है दोनों में? The flexible exchange rate is the rate which determined by the supply and demand force in the foreign exchange market. It is a free from intervention from the market focus or market force. On the other hand, the managed floating exchange rate is the market rate which can be influenced by the intervention of the central bank in the foreign exchange market. It is a tool control and the tool of control the under unfavorable impact of flexible exchange rate. इसका मतलब यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस है। फ्लेक्सिबल को हम ऑलवेज हमने बोल के आया कि दैट इज कंट्रोल बाय द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई को फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट बोथ द फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। तो इसीलिए द डिफरेंस इज दैट कि फ्लेक्सिबल में खाली सिंगल ऑपरेटिंग दैट इज द मार्केट फोर्स ऑपरेटिंग कर रहा है, बट इन मैनेज में आके ये सेंट्रल बैंक एज वेल एज द मार्केट फोर्स दोनों मिलकर ऑपरेट कर रहा है। दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द लास्ट लाइन। देखो मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ। इट इज ऑन द अदर हैंड द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज द मार्केट रेट which can be influenced by the interventions of the central bank in foreign exchange market. It is a tool means instrument, tools to control the unfavorable impact of the flexible exchange rate. Unfavorable मतलब ऐसे नहीं कि एकदम स्लो, मतलब डाउन में आ जाए, पैसे एकदम नीचे घट रिड्यूस होके डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाए। तो देयर इज ए टारगेट कंट्रोल, यानी ये कंट्रोल कौन करता है? अंडर दिस मेथड ओनली द सेंट्रल बैंक ऑफ द रेस्पेक्टिव कंट्री। दैट्स इट, क्लियर। अब इसका अंदर थोड़ा सा एक पॉइंट है जो मैंने वहाँ पे देखोगे पीडीएफ फाइल भेजा, वो थोड़ा सा बोल्ड में मैं देखो वहाँ पे हेडिंग दे रखा है, द एग्जांपल ऑफ द मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। इसको पढ़ोगे तो मैनेज फ्लोटिंग रेट एंड द फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग रेट एंड द फिक्स्ड फ्लोटिंग रेट की जो भी डिफरेंस होगा तुम लोगों को ये आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देंगे। थैंक यू, रीड इट आउट।